कोलकाता के मशहूर पैन इंडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म होईचोई ने अपने छठी सीजन का अनाउंसमेंट किया। नए सीजन के साथ नए शोज, जिनमें कुछ पुराने शोज के नए सीजन हैं, कुछ नए हैं, कुछ भारत और बांग्लादेश के प्रकाशित हैं। इन सभी का अनाउंसमेंट हुआ कोलकाता में। पिछले 5 सालों में बांग्ला भाषा में ढेर सारे शो बनाए, जो देश भर में कई भाषाओं में देखे गए। नए सीजन में नया अंदाज है। पुराने शोज नए तेवर में है। इस मौके पर बंगाली इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई जाने पहचाने चेहरों ने नए सीजन का अनाउंसमेंट किया। आइए देखते हैं कि शाम की कुछ नजारे। So, what do I say? আমার মনে হয় যে this is just only a 60th. আমি অনেকক্ষণ ধরে এসেছি and I saw the lot of upcoming series যারা এখানে কাজ করেছেন, তাদের টিজার ট্রেলার দেখলাম of course, but I've been part of Venkatesh Films SVF from the day one when they started their career. So I really feel proud to be here. এবং yeah, it's been a very long journey, honestly speaking, but I know them from a long time. তো ওদের সঙ্গে এই জার্নিটা ইজ লাইক, আমার একটা কথা ভীষণভাবে বলতে ইচ্ছে করছে যে আমি একটা ছবি করেছিলাম, ছবিটার নাম ছিল মনের মানুষ। তাতে একটা জায়গা ছিল যেখানে মানে একটা গান ছিল, যে গানটা আমরা সবাই জানি, মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের সঙ্গে। এই গানটা বোধহয় ইজ ভেরি অ্যাপ্ট আজকের দিনের জন্য, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন, বাংলা নিয়ে যারা কাজ করেন, সেটা এবার বাংলা হোক ওপার বাংলা হোক, তারা সবাই এক জায়গায় এসছেন। এবং একটু আগে আমি বলছি, সিনেমাতে আমরা অনেক কিছু পারি না করতে বিকজ অফ লট অফ রিজনস, বাট আজকে এই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু প্রচুর ট্যালেন্টস ফ্রম দুই বাংলা, যারা ইয়াং, যারা ট্যালেন্টেড, তাদেরকে বিশাল বড় একটা সুযোগ দিচ্ছে। এবং এই এক্সপোজারটা ওয়াজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর অল অফ আস, কারণ আমি মনে করি দুই বাংলা মিলিয়ে এত ট্যালেন্টেড মানুষ আছেন, শিল্পীরা আছেন, কলাকুশলীরা আছেন, টেকনিশিয়ানসরা আছেন, ডিরেক্টরসরা আছেন, তাদেরকে সিনেমাতে আমরা অনেক রকম বাধা সৃষ্টি করতে হয়, আমাদেরকে অনেক রকম প্রসেসের মধ্যে যেতে হয়, কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটা বোধহয় আমাদেরকে সেই জায়গাটা বিশালভাবে ওপেন করে দিয়েছে। আই এম সো প্রাউড অ্যান্ড সো হ্যাপি। অ্যান্ড ফাইনালি বলবো যে হইচই এবং অফকোর্স SBF এর টিম, বাট স্পেশালি বলবো হইচই টিম যারা কাজ করেন ডে নাইট, আই নো দেম ভেরি ওয়েল, কারণ আই হ্যাভ বিন সিইং দেম, ওরা প্রচুর কাজ করেন। অ্যান্ড এই কাজটা করছেন কোথায়? আমরা এই যে বারবার বলি না যে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ সিনেমা বানাই বা আমরা রিজনাল সিনেমা বানাই, হোয়াট এভার যারা যেটা বলেন, অ্যান্ড আই পার্সোনালি বিলিভ যে আজকের দিনে এই প্ল্যাটফর্মটা দাঁড়িয়ে আমরা এটা বলতে পারি যে আমরা ইন্ডিয়ান কন্টেন্ট। ইয়েস, আমার মনে হয় যারা এখানে কাজ করছেন বা যারা আগামী দিনে কাজ করবেন, তারা ভারতবর্ষের অন্য রিজনে যে ধরনের কাজ হয় সেই কাজ ডেলিভার দেওয়ার মতন ক্ষমতা আছে। এবং আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ সামথিং শ্রীকান্ত, বিষ্ণু, মণি অ্যান্ড যারা উপরে আছেন, তারা এটাই পাচ্ছেন যে দ্য রাইট ট্যালেন্ট অ্যান্ড দ্য রাইট ওয়ে টু go forward. So I think this is a wonderful moment for all of us, and thank you to everybody. এখানে রিনা দি আছেন, the most senior most আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সব থেকে সিনিয়র মোস্ট পার্সন, সো রিনা দি আছেন, and we all are there, so thank you so much. আর বাংলাদেশ থেকে যে অতিথিরা এসছেন তাদেরকে আমাদের এন্টায়ার টিমের তরফ থেকে, মানে আমাদের তরফ থেকে, আমাদের বাংলার হইচই শুধু বলবো না, আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে আপনাদেরকে খুব আন্তরিকভাবে আপনাদেরকে আমি, বিকজ এখানে দুজন অভিনেতা বসে আছেন, দুজনেরই আমি বিশাল বড় ফ্যান। অনেস্টলি বলছি, হয়তো মনে হবে যে এটা আমি বানিয়ে বলছি, আমি কিন্তু প্রায় সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন
যত রাত্রি হোক রাত দুটো হলেও হইচই দেখি। तो मेरे साथ हैं अनिंदो सेन गुप्ता जो होइचोई का चेहरा बन रहे हैं और इनका नया शो जो नए फिल्म है हॉस्टल डेज विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका हॉस्टल डेज बिल्कुल हॉस्टल डेज की याद दिला रहा है। हाउ कितना मज़ेदार था शूटिंग करना? बहुत ही मज़ेदार था। देखिए एक यूनिक बात है, एक मज़ेदार बात है कि मैं कभी खुद कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ, तो आई डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट माई फॉर्मल एजुकेशन थ्रू अ फॉर्मल स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूल। सो फॉर मी इट वॉज लाइक living those college days and moments. It was fantastic. There's obviously a huge twist in the story which I will not reveal. However, it is not a thriller or a detective story. In fact, out of these 25 stories सिर्फ यही एक किस्सा है जिसमें कोई डिटेक्टिव या थ्रिलिंग कोई एलिमेंट वैसा नहीं है। ट्विस्ट है लेकिन वो थ्रिलर टाइप का नहीं है, ड्रामा, ह्यूमन ड्रामा है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग दैट जो सारे 25 कंटेंट है सबके टेकर्स हो। और तो अभी क्या वक्त तो आ गया है कि आपका शो ना लोग पता नहीं किस भाषा में कहाँ देखते हैं, कि OTT डब होके आता है हिंदी इंग्लिश अलग अलग भाषाओं में। तो OTT ने कहीं ना कहीं एक बहुत ही ना लोगों को बहुत दूर दूर तक पहुँचा दिया है। तो कैसा रिस्पांस आपको मिलता है? लोग आपको मिलता है आपका शो हमने देखा था, तो एनी कोई ऐसा इंस्टेंस जब आपको लोगों ने आके आपके शो का कॉम्प्लीमेंट दिया हो एंड यू डिडंट एक्सपेक्ट इट? Yeah, see, thankfully, I come from a very middle class upbringing, so on the streets right now, when people come and tell me that we love your work, we've seen you working and act and stuff like that, so it's very exciting and very humbling and very gratifying. So because of OTT, जस्ट लाइक यू सेड कि अभी सारे दुनिया में सब जगह बिकॉज ऑफ सब टाइटल्स, जैसे कि हम लोग दूसरे भाषा है जो हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी सब टाइटल्स की वजह से हम लोग को उन लोग का किस्सा देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। तो हम लोग का किस्सा भी मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि सारी दुनिया तक फैले। दुर्गा पूजा का वक्त है और सारे सबकी नज़र रहती है कलकत्ता पर, तो कलकत्ता में इस बार दुर्गा पूजा का क्या रंग होगा? कलकत्ता का इस बार दुर्गा पूजा में मेरे ख्याल से रेड एंड ब्लैक होगा, क्योंकि सीज़न 6 आने वाला है। और जो अब क्योंकि अब वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ दुर्गा पूजा, फॉर द लास्ट 2.5 years people have not been able to come out and really have fun. They have been a little cautious, but this time around I'm sure they'll still be cautious about everything which is going on. However, they will really let their hair down and have fun. बंगाली सिनेमा, और सबसे पहले सत्यजीत रे ने वर्ल्ड को जो सिनेमा दिखाया वो बंगाली बांग्ला सिनेमा था, और बॉलीवुड में भी बहुत सारे बंगाली लोगों ने परचम लहराया है। तो व्हाट डू यू थिंक, हिंदी सिनेमा और बंगाली का जो नाता है बहुत गहरा है, तो हाउ आर द बंगालीज दे प्रूव देमसेल्व्स एवरीवेयर, द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स, राइटर्स, एक्टर्स, सो how do you feel this proudness of being a Bengali and who's contributed so much to the Indian cinema? See, more than pride, I think I have this gratitude. I think I am really privileged to have been born in a language which has such rich history and such eminent artists and thinkers and writers and craftspeople rather. So I'm just privileged that I've been born into this language, and I'm privileged also to be born in a country where naturally, just except for my mother language, I am also exposed to so many other beautiful languages, which makes me a more conducive person to languages and culture, I guess. आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो हिंदी शो में कब दिख रहे हैं आप, या हिंदी प्रोजेक्ट? जितना भाषा मैं उठा सकूंगा, सीख सकूंगा, सब भाषा में काम करना चाहता हूँ। जितने सारे भाषा में आप काम करना चाहते हो या आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप उतने सारे कल्चर्स, उतने सारे लैंग्वेजेस, उन लोग के किस्से आपको सुनाने को मिलते हैं, आपको सुनने को मिलते हैं, तो वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन प्राइमरीली मैं बांग्ला में ही काम करना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे साथ है विक्रम चैटर्जी, एक बहुत पॉपुलर फेस, इनके शो तानसेन मैंने बहुत देखा, बहुत पसंद आया। तो ये बताएं, आप मुंबई कब आ रहे हो? ये एक्चुअली जा रहा हूँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आई हैव अ कपल ऑफ मीटिंग्स देयर एंड आई एम अवेटिंग माय फर्स्ट हिंदी फिल्म्स रिलीज, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। यस, आपका शो क्योंकि इतनी जगह पहुंचता है, हिंदी और कई भाषाओं में डब होता है, जब लोग मिलते हैं आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं आपके शो के लिए? मे बी वो बंगाली नहीं हो, बट दे हैव लव्ड योर शो, तो समवेयर OTT हैज ब्रिज्ड दैट लैंग्वेज बैरियर। आई थिंक इन जनरल OTT हैज़ ब्रिज्ड द लैंग्वेज बैरियर फॉर अस ओवरऑल, क्योंकि हम लोग भी जब आज के डेट में फिल्में देखते हैं तो हम पूरे दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस की फिल्में देखते हैं, इंडियन बहुत सारे लैंग्वेजेस की फिल्में देखते हैं। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फिल्म्स फ्रॉम डाउन साउथ राइट नाउ। सो येस, आई थिंक लैंग्वेज इज़ नो बार एनी मोर। इफ़ यू मेकिंग गुड कॉन्टेंट, अगर कॉन्टेंट अच्छा है, अगर लोगों को पसंद आने लगा है, तो दैट इज़ समथिंग दैट विल गो वायरल फॉर श्योर। OTT की बात करें तो होइचोई ने एक अलग ही इतिहास रचा, मतलब कहाँ से इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ा, इंडिया को पूरे देश से बंगाल को जोड़ दिया। तो कितना कंट्रीब्यूशन है OTT इंडस्ट्री का पूरे इंडियन सिनेमा में? आई थिंक
बिकॉज वे स्पीकिंग अबाउट होइचोई इन जनरल आज, तो मैं ये बोलना चाहूँगा दैट होइचोई फॉर दी बंगाली OTT प्लेटफॉर्म्स, आई मीन व्हेन यू स्पीक अबाउट दी बंगाली OTT प्लेटफॉर्म्स सिनारियो राइट नाउ, they are the most important player that we have. They have a brilliant lineup of shows. They have the best of the films available in the Bengali market. So if you look at it that way, then they probably are the biggest platform that we have for the Bengali language, and definitely one of the biggest players across India as well. So yes, very excited. Yeah. अभी हम आपको कहाँ देख पाएंगे, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं और किन में आप हमें देखेंगे? फिलहाल आई एम बिजी विद अ फ्यू फिल्म्स. एक अभी कुछ दिन पहले रिलीज हो चुका है, SVF का ही फिल्म था, होइचोई पे है फिलहाल. इट्स कॉल्ड कूलेर आचार. दैट फिल्म इज ऑलरेडी देयर. आई एम अवेटिंग अ कपल ऑफ मोर रिलीजेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सो फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड अ हिंदी रिलीज, दैट विल बी माय फर्स्ट हिंदी फिल्म. सो प्रीटी एक्साइटेड. अ लॉन्ग लाइनअप. पूजों का वक्त है तो पूरे देश की नज़र इस वक्त रहती है कोलकाता पे, तो आपकी पूजों की तैयारी क्या है, क्या कुछ करेंगे पूजों पर? जी, मैं नॉर्मली पूजों के टाइम पे भाग लेता हूँ. आई नॉर्मली लीव द सिटी एंड आई गो टू द हिल्स. दैट्स बीन माई नॉर्म फॉर द लास्ट 7-8 years now. In fact, I've been going to the hills every year, and it's the same this year. I'll have to go to Bombay once. I'll be in Bombay from 27th for a few meetings, and then on the 3rd I leave for the hills. जाते जाते हमारे व्यूअर्स को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दे दें, आपके फैंस को. Hi, this is Vikram Chatterjee, and here's wishing you all my luck and love for the Durga Puja that's coming up. Please enjoy yourself, stay safe, take care. Thank you. तो आज एक बहुत ही दुर्गा पूजा का मौका है, हम यहाँ कलकत्ता में आए तो शहर तो सजा हुआ है, लेकिन आज होइचोई ने इतने सारे शोज़ लॉन्च कर दिए. एंड होइचोई कहीं ना कहीं वो ब्रिज जो था, मतलब उन्होंने भाषा का तोड़ डाला है. तो क्या लगता है OTT के आने से जो एक रीजनल सिनेमा सो कॉल्ड था, वो अभी रीजनल इरा इज बिकम द कंप्लीट इंडियन सिनेमा, द सिनेमा डायस्पोरा फॉर ऑल. तो अभी तो ये लैंग्वेज का बैरियर ऐसे ही होल वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि हर ये भाषा बोलते हैं जो फिर भी उसका हक के बाहर दूसरा कंटेंट भी वो कोशिश करता है कि देखता है. आप एक जापानीज़ फिल्म देखते हो, उसके बाद ही शायद एक मेक्सिकन फिल्म देखते हो. सबटाइटल आ गया है होल वर्ल्ड के लिए, हर वर्ल्ड का कंटेंट खुल गया है. उसी में ये बांग्ला कंटेंट तो हो रहा ही, उसके बाद भी होइचोई दूसरे लैंग्वेज में भी उसका डब वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो ये बहुत ही कमाल का एक काम है, क्योंकि हम लोग का काम जो रीजनल काम में ही बंद हुआ था इतने दिन, तो वो बाहर का जो दूसरा लैंग्वेज का, दूसरा रीजन का ऑडियंस भी देख रहे हैं अभी. ये बहुत ही अच्छा है. कौन से प्रोजेक्ट्स अभी हम आपको देख पाएंगे? आपका चेहरा हमेशा हम देखते हुए, ढेर सारे शोज़ आपके फिल्में याद आती हैं, तो अभी हम आपको कहाँ देख पाएंगे? फीचर फिल्म तो बहुत सारे आ रहा है ये, लेकिन ये होइचोई का ये 25 कंटेंट में मेरा भी एक है, बंगाल बीमा स्कैम बोल के, अभिरूप घोष का डायरेक्शन में. तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. उसका पहले का जो कंटेंट था होइचोई में, उसका नाम था बैद. ये पता नहीं हिंदी में उसका नाम कुछ बदला हुआ है कि नहीं. बांग्ला कंटेंट का नाम था बैद. तो ये भी डेफिनेटली ऑडियंस बहुत ही पसंद करेगा, ये मेरा यकीन है. तो मेरे साथ है टेलीविज़न का सबसे खूबसूरत चेहरा पूजा बैनर्जी, और एक्चुअली इनकी वजह से ही मैंने होइचो देखना शुरू किया, क्योंकि इनका एक शो था पाप, जो मैंने देखा ना, आई वाज हुक्ड ऑन टू इट. पूजा, सो इट्स यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर इन कोलकाता फॉर होइचो इवेंट. तो कितना इंपॉर्टेंट था पाप आपके लिए? सच अ ब्यूटीफुल एक्टिंग, व्हाट अ स्टोरी. एक्चुअली जितनी फिल्में मैंने की है यहाँ पे सारे कमर्शियल हैं, और कमर्शियल फिल्मों में आपको पता है हीरोइन का क्या काम होता है, गाना गाना, अच्छे कपड़े पहनना, ग्लैमरस दिखना. बट एज एन एक्टर वो जो भूख रहती है ना हमेशा कि एक मौका मिले तो हम अपना टैलेंट शोकेस कर पाए, वो मुझे आई थिंक पाप से मिला, और मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ऑब्वियसली जाने नहीं दिया. एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि मैंने पाप किया और पाप सीज़न 2 किया. मतलब मैं पहली इंसान हूँ जो बोल रहा है कि मैं पाप करके खुश हूँ और मैं और पाप करना चाहती हूँ, बिकॉज पाप 2 भी उतना ही सक्सेसफुल रहा जितना पाप 1 था. एंड इनफैक्ट पाप 1 के बाद सच में बोल रही हूँ कसम से, ये जो लॉकडाउन लग गया था उसके वजह से बहुत डिले हो गया था. तो मुझे सब लोगों ने पूछ के
एंड स्पेशली बिकॉज मैं यहाँ के अलावा भी काम करती हूँ, तो वहाँ पे भी जो बॉम्बे में लोग हैं मुझे जानते, वो भी कहीं ना कहीं इस शो से हुक्ड अप हो गए और वो भी मुझे पूछने लगे थे कि सीज़न 2 कब आएगा, सीज़न 2 कब आएगा. सो आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ होइचोई फैमिली एंड 2 सक्सेसफुल सीजन्स आई डिड विद देम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर एसोसिएशंस. एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, बंगाल में ऐसा प्लेटफॉर्म जब आया जो पहले नहीं था, और जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है और जितनी ये तरक्की कर रहा है, आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ देम एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. आपने कलकत्ता से करियर शुरू किया, बॉम्बे पहुँचे. बंगाली इंडस्ट्री और हिंदी का एक बहुत अच्छा एक रिश्ता रहा है, फ्रॉम सत्यजीत रे टू अभी मैं अयान मुखर्जी का नाम लूँगा. मतलब बंगालीज एवरीवेयर, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो. तो कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है बंगाल का हमारे सिनेमा पे? आई थिंक आर्ट और बंगाल का रिश्ता तो है ही, क्योंकि सारे बंगाली कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक होते हैं. वो किसी भी चीज़ में हो सकता है. मोस्ट ऑफ देम आर फूडी, बट वो भी एक आर्ट है. खाना बनाना या एनीथिंग रिलेटेड टू फूड इज़ ऑल्सो एन आर्ट. सो मोस्ट ऑफ अस आर आर्टिस्ट फ्रॉम हार्ट. सो डेफिनेटली. एंड मैंने यहाँ पे भी काम किया है, वहाँ पे भी काम किया है. एक्चुअली वहाँ पे पहले करती थी, फिर मेरे मॉम डैड ने बोला कि तुम बंगाली हो तो तुम्हें बंगाली फिल्म तो करनी ही पड़ेगी ना. यू आर प्राइड एंड यू शुड डू समथिंग. तो ऑफ कोर्स एंड मैंने इनके साथ ही किए है, जितनी फिल्में की है SBF के साथ किए है. बाहर भी किए, बट ज़्यादातर काम मैंने SBF के साथ ही किया है. और फिर जब मोनिता ने मुझे बुलाया था एज आई सेड होइचोई के लिए, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज ये वन ऑफ अ काइंड चीज़ था, तभी शुरू हो रहा था ये सब. तो आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट. आपका भी अनुपमा में भी OTT डेब्यू हिंदी में काफ़ी अच्छा रहा. तो कैसा रिस्पांस आपको अनुपमा चली अमेरिका से मिला, विच इज़ अ स्मॉल कैमियो बट वेरी स्ट्रॉन्ग रोल आई मस्ट से. एक्चुअली ये होने वाला कुछ और था, पर हो कुछ और गया, क्योंकि बिजी स्केड्यूल उनका भी मैं समझ सकती हूँ. उनका जो डेली सोप होता है जब हम करते हैं, तो हमको 30 दिन में कहीं टाइम नहीं मिलता. तो करना कुछ और था स्टोरी को, बट हमने मतलब कुछ और करके लैंड अप किया स्टोरी को. बट एज यू सेड, या आई हैड अ पावरफुल कैरेक्टर, तो जितना मेरा पार्ट था मैंने कोशिश किया एंड आई डिड जस्टिस. एंड आई थिंक बॉम्बे से ज़्यादा बाहर लोगों ने देखा, मतलब बाहर मतलब इंडिया के बाहर. और मुझे काफ़ी जगह से मेल्स, मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आए हैं. जो बाहर जो अनुपमा के फैंस हैं ना, वो शायद टीवी शो को इतना फॉलो नहीं कर पाते, बट OTT के ज़रिए उन तक जो पहुंचाया गया है. सो हॉटस्टार के बहुत सारे ऑडियंस में बोलना चाहूँगी जिन्होंने ये देखा है, पसंद किया है. तो बहुत लोगों ने मुझे US से फ़ोटो खींच के भेजा है कि ओ माय गॉड यू आर डूइंग अनुपमा. मैंने आई एम नॉट डूइंग द शो, आई एम जस्ट देयर फॉर द OTT वर्जन. सो या अब धीरे धीरे करके चल रही है, चीज़ें हो रही है. हमेशा एक स्पेशल चीज़ होती है कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाना. हम बस कोलकाता में आए हैं कि दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है. तो कितना स्पेशल होता है दुर्गा पूजा यहाँ का? हमारा तो काम में ही चला जाता है तैयारी, क्योंकि जितने एड्स करने होते हैं पूजा से पहले, अब वही चल रही है. आज भी एक था, कल है, परसों रोज़ कुछ ना कुछ है. बट इसमें मज़ा ये आता है कि हमको अच्छे से घूमने मिलता है पंडाल में, क्योंकि जो आप दुर्गा पूजा के टाइम पे अगर देखोगे तो गाड़ी निकलने की जगह नहीं होती है, रास्ते में सिर्फ लोग चलते हैं. तो उस सिचुएशन में जाके देखना, इवन अगर आपको VIP ट्रीटमेंट मिले, वो अच्छा भी नहीं लगता उस टाइम पे, क्योंकि शायद लोग 2-3 घंटे लाइन में खड़े और आप सीधा जाते हो. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भगवान के सामने कोई VIP नहीं है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता. और स्पेशली क्योंकि बेबी है, तो उसे लेके इतने रश में जाना पॉसिबल नहीं. बट हमारे काम के ज़रिए थैंकफुली आज भी, जैसे मैं वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट पंडाल्स जो है हिंदुस्तान पार्क, वहाँ पे मैंने शूट किया. तो पहली मैं ही हूँ शायद जो मैंने माता को देखा, और इतनी मतलब अच्छे से करीब से देखने मिलता है. तो अच्छा लगता है. दीज आर पर्क्स ऑफ बीइंग एक्टर्स. बट इसी बहाने, हमारे काम के बहाने, हमें थोड़ा पंडाल घूमना और दर्शन होना, ये सब हो जाता है काम के ज़रिए. उसको समझ में पूरा ही आता है. वो है भी यहीं आया हुआ है कैलकाटा. हाँ. अब बेबी छोटा है, इसके लिए ही इज़ विद बेबी, और मैं आई थी यहाँ पे अटेंड करने. बट वो आता है. और ये कुछ सालों तक तो हम लगातार आते रहे हैं. मतलब कुणाल को भी मैं लेके आई हूँ. और अब बेबी का लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था, तभी भी वो दुर्गा पूजा में था 2-3 दिन कैलकाटा. इस साल भी ऑफ कोर्स मैं अब आए हैं तो दुर्गा पूजा में उसको घुमाने वाली हूँ. और अब वो बड़ा हो रहा है ना, तो उसे समझ में आ रही, तो उसको अच्छा लग रहा है. लाइटिंग और ये सब वो इन्जॉय कर रहा है. अब जाते जाते उम्मीद करते हैं दुर्गा माँ आपको बहुत शक्ति दे. What you have to say the Durga Puja wishes to the audience? सबको मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक अभिनंदन. मैं एक्चुअली बंगाली में बोल देती हूँ अनेक अनेक शुभेच्छा.
প্রীতি ও শুভেচ্ছা শারদীয় उत्सवेर एंड सब अच्छे से धमाल कीजिए क्योंकि 2 साल बाद हमें मौका मिला इवन गणपति इवन दुर्गा पूजा तो मज़े कीजिए मस्ती कीजिए खूब सारा खाना खाइए और होइचोई देखिए। तो मैं हूँ कलकत्ता में, मेरे साथ एक ऐसा चेहरा जिन्होंने कलकत्ता और मुंबई के डिस्टेंस को सबसे पहले कम किया हाल फिलहाल। तो पावली आज यहाँ पर आकर मतलब अब जिस होइचोई जब से आया है तो इन्होंने बिल्कुल ब्लर कर दिया, मतलब कहानियाँ बंगाली में बनती है पर सब भाषाओं में दिखाई जाती है। तो आई मीन यू द फ्यू एक्टर्स इन द रीसेंट टाइम जिन्होंने सबसे पहले सब भाषाओं में काम किया एंड नाउ यू सी दिस OTT प्लेटफॉर्म हैज़ रियली टेकन द लैंग्वेज to across the world. So what kind of change do you think OTT has brought in the entire landscape? I think it has created a new platform, new opportunities for a lot of fresh people, talents, real talents, I would say. And also for OTT, I would say it's more of a personal viewing. Like traditional cinema जैसे बनती है ना वो like community viewing for me. So contents में भी बहुत difference होता भी है, होना भी चाहिए. So OTT I would say is another platform for new opportunities. So that's a great thing actually, and especially during pandemic it has become a boom because everybody was at their place, they couldn't move out, and so they were like engrossed in all those contents which was getting created. So that has also helped a lot, I would say. So eventually a lot of different and nice contents are happening all across, and I'm looking forward to watch few. आपने काफ़ी सारे OTT शोज़ में काम किया है, तो हिंदी शोज़ और यहाँ के बांग्ला शोज़, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन वर्किंग कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट, स्टोरी ट्रीटमेंट, any difference do you see in the working culture of both the cities? No, I don't think so. I think language is no longer a barrier that way. Means nowadays we call it language cinema or regional films. हम लोग बोलते भी नहीं हैं अभी. So in fact, let me tell you, like it's a very good day today. One of my series, which is called Karma Yudh, it's coming on Disney Hotstar, and yeah, the trailer is out today and 30th से streaming होगी. Like all the episodes you can see on Disney Hotstar, so I'm really looking forward to that. So this what has also happened, you know, OTT like actors, they are like from wherever, whichever language they belong, they are all coming on board, and एक pan India feel जैसे हो रही है, you know, like that's a feeling like you're watching something which does not belong to a certain region, it's not restricted to a certain region. So that is also like contents भी वैसे तैयार हो रहे हैं where you can get actors from anywhere. So that is also that's why I said opportunity. होइचोई ने आज 25 टाइटल्स लॉन्च किए, कैसे लगे? भारत और बांग्लादेश को भी उन्होंने जोड़ दिया कहीं ना कहीं, तो हाउ डू यू एंजॉय द इवनिंग? It's fantastic, I would say, initiative. ये ज़रूरी था. Actually, I have done joint venture projects, Monir Manush, which was directed by Gautam Ghosh. It was an Indo-Bangladesh joint venture. But a lot of difficulties, you know, directors and makers, they face when they want to do traditional cinema. But when it comes to OTT, that again becomes easier also to get and put things together. And this was required for a bigger market to reach a lot of audience. You know, the audience base बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, where you get everyone, every region, maybe the entire world together. Who knows, there may be a film or a series like sometime for OTT where Spanish, Turkish, German, Indian, Hindi with सब लोग एक साथ आएंगे. Why not? I'm really looking forward to a world like that where we all come together and create lovely contents. ये सबसे खूबसूरत महीना है, दुर्गा पूजा का वक्त है, पूरा कलकत्ता सजा हुआ है. How excited are you for the puja and what's the plan this year? I don't make plans. It doesn't work out that way. But pujas, I especially try to stay in Cal. Family is here and friends are here. So this year especially, I'm looking forward to a lot of friends who couldn't come last 2 years because of the pandemic. They couldn't travel to this part of the world. So they are coming over. So I'm expecting some lovely evenings and moments with them. चाहते थे हमारे व्यूअर्स को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दे दें, दुर्गा माँ आए और ये जो हमारा सब हर के चले जाए और महिषापुर का संहार करें. Of course. In Bengali we call it Sharodiya, so I want to just dedicate so happy Durga Puja, Shubho Sharodiya তোমাদের সকলকে. Like pujas, I'm really hoping and wishing this year it will be a lot of joy and happiness for all actually. So be safe, be careful, enjoy and have fun. Thank you.
तो 5 साल पहले कहानी शुरू हुई थी होइचोई की, आज 5 साल पूरे हुए और 25 टाइटल्स। तो होइचोई ने कहीं ना कहीं एक बांग्ला प्लेटफॉर्म से एक पैन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म का सफ़र तय किया है। तो शोमू जी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये पूरा सफ़र में वो हिस्सा रहे हैं। तो हाउ डू यू फील लाइक कि 5 साल का सफ़र, 25 टाइटल्स एंड द जर्नी फ्रॉम अ रीजनल OTT प्लेयर टू अ वर्ल्ड वाइड OTT प्लेयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस। हाउ डू यू लुक एट इट? First of all, thank you. Journey has been very fruitful and rewarding, honestly. I think I was there since inception. Pehla recruit tha, and today we have a team of almost 90 people. And from there we have grown immense. We have launched in multiple new countries. We have done 120 original shows. So naturally, feeling is very good. बहुत अच्छा feeling है. मैंने pardon my Hindi. My Hindi is not very good, but the overall journey has been very, very rewarding, to be honest. आपने शुरुआत की थी बांग्ला शोज़ की विच वर वेरी पाथ ब्रेकिंग, बट देन दे गॉट डब्ड एंड आज पता नहीं कंट्री में कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो व्हाट वाज दैट विजन ऑफ SVF वाज द पेरेंट कंपनी, व्हाट वाज द विजन यू थॉट ऑफ एंड हाउ डिड दैट सीड बिकेम अ ट्री नाउ? We knew that we always wanted to bring out stories that people have or that people did not see on films or on the television, right? So what we did was we decided to merge both our film teams and the television team for quality as well as discipline, and then Hoichi happened, right? And we experimented with 5 shows initially. ये 5 शो जब चलने लगा and we started getting audience feedback, then we realized, okay, we need to create more stories. And that's how the journey from 5 original shows to, let's say, 120 original shows started. And it has been a big team effort, honestly. We are very lucky that we are from Bengal, where we work with a huge talent pool of creators, technicians, talent. And as such, we were able to cultivate that, honestly. And we knew, and we always listened to the customers. We knew what the customers wanted and we wanted to provide to them. I think that has been the real success story for Hoichi. Some of his successful shows like Hello and Want to Pilot, they have been like very different. उनके seasons भी आए. तो कौन से आपके proud creations हैं which you think will are the USPs and people always remember Hoichoi with that, which you also are really proud of? It's very difficult to select out of your children, right? I mean, I have pretty much produced all the shows, so it's very difficult to select. But then, having said that, a lot of shows has given different or has fulfilled very different objectives for Hoichi, right? Hello launched us, Bomkesh established us, Mohanagar, a Bangladeshi show by Bangladeshi talent, that really put us on the map in that country. Mondar got us a lot of critical acclaim. Montu Pilot helped us reach to the masses. So every show had its own journey and very rewarding at the end of the day. सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने काम किया है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ डाला, जो काम नेता नहीं कर पाया आप लोगों ने कर डाला. तो हाउ डिड दिस ऑल स्टार्टेड? भारत और बांग्लादेश का एक बहुत गहरा नाता है, कल्चर का, संस्कृति का. तो कैसे शुरुआत हुई थी और कितने सक्सेसफुल रहे आप इस अटेम्प्ट में? See, we always knew that we wanted to entertain 250 million Bengalis worldwide, right? Out of those 250 million, 180 million are from Bangladeshi or Bangladeshi diaspora. So as such, from day one, we knew we had to start investing in content creation and the creator ecosystem in Bangladesh. We launched in 2019 and luckily we were able to work with the right talent and bring about the right shows that resonated with the audience. I mean, we have just announced 4 more shows in Bangladesh, but to be honest, in January, we will go ahead and announce another 12 more in Bangladesh. It's already in the works. So, very happy with the love that we have received from the Bangladeshi people, and ultimately we are just divided by a border. We speak the same language and people want to see content from everywhere, right? So that has been the Bangladesh story. अभी ये जो विजन आपने जो 2022 का जो सीज़न 6 है, उसके अलावा आपका और क्या प्लान्स हैं और क्या, हाउ डू यू सी होइचोई next year? Next year is going to be a lot about distribution for us. We have a lot of strategic partners, but to be honest, we want to onboard more in terms of strategic bundling partnerships and a lot of expansion in countries like Middle East, Southeast Asia. At the same time, investing a lot more in creating Bangladeshi content while investing in local content to amp up the production quality and bring bigger stories to the audience. I would sum it up by saying that we want Hoichi to be more accessible in
in our 6th year. थैंक यू सो मच एंड इट वाज सच अ प्लेजर। आपने काफ़ी सारी जानकारी हमें दी, तो उम्मीद करते हैं कि हम अगले साल भी आएँ और बड़े बड़े अंदाज में आपके शोज Absolutely, देखें। I'm sure season 7 would be much bigger. And thank you so much for coming. Thank you so much. थैंक यू सो मच Thank एंड you so ऑल द बेस्ट Thank you so much. एंड हैप्पी पूजो। Happy Pujo. Thank you so much. तो मेरे साथ है अपर्णा सेन मैम, जिन्होंने सबसे पहले अपनी सिनेमा से बंगाल का जादू सबको दिखाया था। मैम, नाउ आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग अ वेरी deja vu feeling because now Hoichoi has like really made it like international now. Bangla cinema is now international. सत्यजीत रे से मतलब इतना बड़ा सबसे पहले वर्ल्ड को उन्होंने दिखाया सिनेमा। योर सिनेमा वाज दिस थिंग एंड नाउ दिस OTT has totally changed the game. मैंने तो हईचई को बिल्कुल शुरुआत से देखी और ये 5 साल में हईचई ने जहाँ पहुँचे वो तो मैं सोच भी नहीं सकती और बहुत गर्व होता है। क्या है वो मेरी भी तीन फिल्म है हईचई में। हाँ और क्या है कि अब आजकल जो है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, होइचोई। होइचोई में बहुत सारी फिल्म ऐसा होता है कि मैं हॉल जाके नहीं नहीं जा पाई, तो मैं सोच रही उस वक्त मैं सोचती हूँ कि ठीक है देख नहीं पाई हॉल में, हईचई में आएगा देख लूँगी। तो मैं जानती हूँ कि हईचई में फिल्म आएगी और मैं वहाँ देख लूँगी। और मैंने बहुत सारे दोस्तों को जो कि बाहर रहते हैं, जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, उनसे मैंने कहा कि बंगला फिल्म अगर आप देखना चाहोगे तो प्लीज़ हईचई ऐप लाओ घर में। तो सिर्फ आजकल जितने सब सारे फिल्म हो रही हैं वो नहीं, पुराने फिल्में भी कितने सारे पुराने टाइटल्स हईचई में है। वो मतलब मुझे तो बहुत गर्व होता है। इतनी अचानक मैंने देखी जो मैंने नहीं देख पाया था। आई वाज सो लकी आई कुड सी इट ऑन होइचोई। इनफैक्ट आपकी पुरानी फिल्में बहुत अच्छी जो हमें नहीं देख पाते थे वो अब यहाँ देख सकते हैं। फिल्में हैं जो कि मैंने SVF के साथ बनाई, अपना इति मृणालिनी, गौनार बाक्सो एंड घरे बाइरे आज। लेकिन मेरी बहुत सारी पुरानी फिल्में हैं जो if हईचई gets them then I would be very happy. पोरोमा, युगांत, ये सब अगर होइचोई मतलब if होइचोई gets them और वो स्ट्रीम करें उन्हें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बट कहीं ना कहीं OTT हैज़ लिबरेटेड पीपल, लिबरेटेड द एक्टर्स, लिबरेटेड द फिल्म मेकर्स। जैसे आपने जब शुरू किया था तो बहुत ही एक लिमिटेड मीडियम था कि फिल्में यहाँ रिलीज़ होंगी, थिएटर में रिलीज़ होंगी। बट डू यू थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी फेस फॉर द फिल्म मेकर्स? It is and it isn't, because I think nothing compares to the experience on big screen. जो बड़े स्क्रीन में आप देखते हो ना, बहुत सारे ऑडियंस आपके साथ देखते हैं और वो सीन्स देखकर एक साथ हंसते हैं, एक साथ दुखी होते हैं, एक साथ गास्प करते ऐसा गास्प करते हैं। वो जो एक्सपीरियंस है उसको मुकाबला करे ऐसा मतलब OTT में मुझे, मेरे ख्याल में, मैं पुराने ज़माने की इंसान हूँ तो मुझे नहीं लगता है उसका काबिल है। लेकिन ये भी है कि आजकल आप जब हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं तो इंटरवल होता है, फिर कई मतलब पॉपकॉर्न, ये आइसक्रीम वगैरह 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 आ जाते हैं। और आपने जो देखा है इंटरवल के पहले जो आपने देख चुके हैं, उसके बाद जो आने वाला है उस मतलब आपको एक इंटरप्शन आ जाता है जो कि आप OTT में नहीं होता। OTT में जो एक्सपीरियंस होती है वो मतलब एक साथ एक मतलब होल टोटल एक्सपीरियंस मिलता है आपको। वो उसके लिए भी मतलब देयर आर टू साइड्स टू इट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंटायर टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हमें मिलता है होइचोई में, नेटफ्लिक्स में, मतलब और सारे OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें। तो
इन सारे प्लेटफॉर्म्स में मुझे बहुत गर्व है कि एक बांग्ला चैनल, बांग्ला प्लेटफॉर्म OTT वहाँ आके मतलब इट्स गॉट इट्स ओन प्लेस देयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको नाम तो काफ़ी OTT पे काम कर रही है, आपका OTT में कितना अभी आपको लगता है, आप व्हेन कैन वी सी मोर ऑफ यू? I don't know. I have not yet made a web series, but maybe I will. मेरे साथ हैं सौरभ उर्फ मोंटू पायलट, और आज सौरभ का बिल्कुल लुक स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट, तो मोंटू पायलट का आज मेकओवर हो गया है सौरभ। राइट, ट्रू, दिस इज सौरभ, नॉट मोंटू पायलट, बट अभी जो अनाउंसमेंट्स हुआ उसमें मोंटू पायलट सीजन 3 का भी नाम आया था, और जो लाइक हलचल मच गया, एंड दैट इज़ अमेजिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रेशर है, बट देन अगेन आई एम फीलिंग वंडरफुल। कहीं ना कहीं मोंटू पायलट आपका वन ऑफ द बेस्ट शो बना, द शो गेव यू सो गुड रिकग्निशन, तो किस तरह से द स्टोरी प्रोग्रेस एंड हाउ मच इम्पोर्टेंस इज देयर इन योर करियर ऑफ दिस शो बाय होई चोई? You know, I feel this is my second birth, Montu Pilot. The amount of adulation, the amount of love that people has given me, it's unbelievable. Never thought ever it would happen. So you know now, जो हो रहा है वो responsibility shoulders पे है, अभी चलना है उसको लेकर, वो बोझ को लेकर, और lovely to have that kind of pressure, you know, and perform. I feel Montu Pilot 3 will be even bigger, even like level up होगा और भी। बॉम्बे कब आ रहे हो आप, की हिंदी इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे, तो मुंबई अभी कब एंट्री हो रही है आपकी? कल से बेहतर है आज। हाँ, सो वर्किंग ऑन इट, और यू नो एज आई सेड, as we were talking, like we are Indian actors, and like doing projects of various languages is what I look up to. करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। मुंबई इंशाल्लाह बहुत आभारी है, like the actors we love, like starting from Manoj Vajpayee to everyone. I mean, like Manoj Vajpayee is my favorite, Irfan Khan is my favorite. तो you know अभी जाएंगे उधर, देखते क्या होता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपके जो क्रेजीएस्ट फैंस मैसेजेस क्या होते हैं? लड़कियां किस तरह के मैसेज भेजती हैं आपको? एक्चुअली क्रेजीएस्ट बोलेंगे तो वो फैंस का DMs नहीं होगा, वो होगा कि लाइक पीपल हैव एक्चुअली टैटूड माई फेस ऑन देयर बॉडी, एंड कभी सोचा नहीं ऐसा होगा। सो व्हेन दैट हैपेंड, लाइक मेनी ऑफ देम डिड दैट, एंड इट वाज लाइक क्रेजी, एंड यू नो दैट लव दैट यू गेट, you feel very lucky. I have done my bit of hard work, but that is being lucky, I feel. फिल्में जो होती हैं एसेंशियली मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट होती हैं, बट कहीं ना कहीं सिनेमा समाज को चेंज करने की भी ताकत रखती हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ सिनेमा इन स्पेशली इन नाउ डेज पोस्ट पैंडेमिक एंड एवरीथिंग इज़ रीबूटिंग? तो सिनेमा जो अभी OTT के रूप में भी है या सीरियल्स के रूप में भी है, लार्जर दिस एंटरटेनमेंट, डू यू थिंक कितना रोल प्ले करता है समाज को बदलने में? It plays a huge part to start with, like you know, if we take examples like Tare Zameen Par, I remember my मेरे पेरेंट्स बहुत मारते थे मेरे को, but after Tare Zameen Par, you know, mummy used to treat me differently, and I thought, what has happened to her all of a sudden? Then I came to know she saw Tare Zameen Par. So the influence is huge. The industry, the Indian film industry is huge, and the whole world knows what is Bollywood. You know, now तो South भी आ रहा है, you know, बंगाल में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो you know we work as a unit, and the pressure, as I told, is immense, but the love that we get सब कुछ का भरपाई कर देता है। मोंटू पायलट सीजन 3 तो आ रहा है, इसके अलावा आज और कोई शोज या फिल्म्स या कुछ, व्हाट इज देयर इन द पाइपलाइन? There are many. I am working on a film at this point of time, हृदयपुर बोल के, और रिलीज होगा 30 सितंबर को ही, SBF का फिल्म, कौंडो सुबर्णेर गुप्तधन। Fingers crossed, I hope that will be the biggest hit of the year if people loves our film. उसके बाद तो मोंटू पायलट सीजन 3 आएगा ही। जाते जाते दुर्गा पूजा की क्या तैयारी है? इस बार कितना अड्डे लगने वाले हैं दुर्गा माँ की, कितनी पंडाल हॉपिंग करने वाले हो? इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। पैंडल हॉपिंग उतना ज़्यादा हम कर नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली जाएंगे। हाँ, मास्क लेके, टोपी पहन के, यू नो, इंडियन ना पहन के जाएंगे दोस्तों के साथ, तो वो रहेगा ही, हाउस पार्टी से रहेगा ही। और मेरा कैफ़े ओपन हो रहा है, फर्स्ट टाइम इनटू बिजनेस इज वेल, सो दुर्गा पूजा में रहेगा, हम उधर ही रहेंगे, सॉल्ट लेक में हो रहा है। सो या न्यू बिगिनिंग्स दिस दुर्गा पूजा। और लास्ट 2 इयर्स पैंडेमिक के कारण तो कोई इतना एंजॉय भी नहीं कर पाया, तो अभी वो
सब कुछ करेंगे, यही बोलेंगे कि बहुत एंजॉय कीजिए, शांति से कीजिए, धूमधाम से कीजिए और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. Thank you, Saurabh. All the best for Monto Pilot, your cafe and your films. Such a pleasure to talk to you and you rock. दुर्गा पूजा पे जो दर्शकों को गिफ्ट मिलने वाला है वह बोधून, और हमारे साथ एक खूबसूरत कहानी लेकर आ रही है खूबसूरत संदीप. तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप ब्लैक साड़ी में. तो कितना वक्त लगा तैयार होने में? थैंक यू. तैयार होने में तो बस हाफ एन आवर. आज दुर्गा आपका शो क्योंकि सबसे पहला ये शुरुआत कर रहा है, थोड़ी नर्वस थे, एक्साइटेड थे जब स्टेज पे, बिकॉज यू गोना बी दुर्गा पूजा भी शुरुआत कर रहे हैं अपने शो के साथ होई चोई के बाकी 25 टाइटल्स के. बहुत एक्साइटेड थी, नर्वस तो डेफिनेटली हूँ क्योंकि ये पूजा रिलीज़ है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है और ये प्रोजेक्ट इतना सीरियस एक प्रोजेक्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट. सो everyone is like very excited about this project. So of course मैं वेट कर रही हूँ ये रिलीज़ होने का. एंड सब दर्शकों आप लोग बताइए कैसा लग रहा है. मतलब 30 सितंबर रिलीज़ हो रहा है बोधून. डोंट मिस दिस. बोधून में खास बात ये कि विमेन डायरेक्टर हैं, कहानी भी विमेन ओरिएंटेड है. एक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक विमेन डायरेक्टर जब होती है तो कहानी की एक सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है. तो आपकी डायरेक्टर जब एक विमेन थी तो कुछ लगा फ़र्क उनके साथ काम करके? डेफिनेटली. जो राइटर है वो भी एक वुमन है एंड जो डायरेक्टर है अदिति रॉय. तो ऑफ कोर्स जो इमोशन है, जो डीपर इमोशंस है, वो थोड़ा एकदम छोटा जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से वो लोग निभाए हैं इसमें. स्टोरी में एक्टिंग जब हम लोग कर रहे थे तब निभा रहे थे. तो दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट और भी सीरियस और भी स्पेशल हो गया है. इसके अलावा बोधून के अलावा भी और कहाँ आप दिखने वाली हैं साल 2022 और 2023 कैसा होने वाला है? बहुत कुछ आने वाला है पर अब मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी क्योंकि सबका तो रूल होता है. पर देख पाएंगे आप मुझे बहुत सारी जगह में. आपने इनको बहुत सारे हिंदी शोज़ के ऑफ़र आते हैं, फिल्मों के ऑफ़र आते हैं, पर अभी तक आपने लिए नहीं. तो व्हाट्स कीपिंग यू फॉर नॉट गोइंग टू बॉम्बे? टाइमिंग. सही वक्त पे सही चीज़ आना बहुत ज़रूरी होता है. पर जब मेरा एक प्रोजेक्ट चलता है तब कोई बॉम्बे से ऑफ़र आता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा कमिटमेंट रहता है. तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता है. अब देखते हैं सही वक्त कब आता है, उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ. पूजो पर क्या तैयारी है? आपका शो आ रहा है तो होइचोई देखोगे कि शॉपिंग करोगे या दुर्गा माँ की आराधना करेंगे? सब करेंगे एक साथ. शॉपिंग अभी तक करने का टाइम नहीं मिला. होइचोई तो डेफिनेटली देखेंगे, बोधून देखेंगे, 30 सितंबर ही देखेंगे, एकदम बिंज वॉच करने वाले. उसके बाद मतलब डेफिनेटली दुर्गा माँ का पूजा में इन्वॉल्व तो होंगे ही. दैट विल बी फन. Thank you so much. All the best for Bodhun and happy Durga Pujo. Thank you. Same to you, Amit. Take care. Thank you. तो मेरे साथ हैं स्वास्तिका. कोलकाता की इंडस्ट्री हम मुंबई में देखते थे, आज बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के. How was the evening? How was the Josh? It was wonderful. The Josh was awesome, amazing, and Hoichoi has come up with such lovely contents this season. I'm sure you all will, stay glued to your seats. And we have just got out after watching all the glimpses of 25 new projects, 25 new series which are being launched by Hoichoi. So I wish them all the very best. And one of my series is about to get released on Hoichoi season 6. So watch out for that. Thank you so much. आज बहुत खूबसूरत लग रही है. साड़ी सबसे खूबसूरत चीज़ होती है. कितना वक्त लगा तैयार होने में? नहीं, वक्त बहुत कम लगा है. चूज़ करने में ज़्यादा वक्त लगा है कि क्या पहनूं. सो साड़ी, आई लव साड़ी. दुर्गा पूजा आ रहा है, सो आई रियली लाइक एन्जॉय वेयरिंग साड़ी ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ दुर्गा पूजो. सो आप सब खुश रहिए और होइचोई में रहिए. थैंक यू सो मच. चाहते हैं तो दुर्गा पूजा की विशेष दर्शन. Wish you all a very happy Durga Pujo and stay blessed, stay happy, stay healthy, which is very much needed. Thank you so much. Thank you so much and happy Pujo.